Yes, hello everyone, welcome on Europedia platform. I hope you all are fine. So guys, I am today here in front of you to discuss with you heat exchanger for JKPSC, Jammu Kashmir Public Service Commission. जैसा कि आप जानते हैं, we have launched one module for this assistant engineer examination conducted by JK, Jammu Kashmir Public Service Commission. So guys, that content is there in your curriculum syllabus. The heat exchanger, analysis of heat exchanger and types of heat exchanger. Okay, so I'm going to cover all those things, and yes, some previous year engineering services question also I'm going to discuss with you. So let's start our discussion with this particular topic, heat exchanger. So these are the topic guys we are going to cover. Let me here highlight in front of you. Introduction to heat exchanger, types of heat exchanger, energy balance equation, that is a part of analysis of a heat exchanger. टेम्परेचर प्रोफाइल फॉर पैरेलल काउंटर, बॉयलर, कंडेंसर. ओके, सो इस सबका हम टेम्परेचर प्रोफाइल देखेंगे, एनालिसिस पार्ट देखेंगे, LMTD, हाउ टू फाइंड आउट द LMTD. डिजाइनिंग, दिस आई एम नॉट गोइंग टू कवर. डिजाइनिंग इज नॉट देयर इन योर सिलेबस एंड वी नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस डिजाइनिंग. फाउलिंग का थोड़ा सा देखेंगे हम, ओवरऑल हीट ट्रांसफर देख लेंगे, और इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर, इंट्रोडक्शन टू NTU, इफेक्टिवनेस NTU मेथड की कोई जरूरत नहीं है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे. ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स गाइस वी आर गोइंग टू कवर. So guys, as you all know, heat exchanger is what? Heat exchanger is a adiabatic device. We generally assume it is like a adiabatic device, means there is no heat transfer from the heat exchanger to the atmosphere. Only the flowing fluids, they are exchanging heat. So generally we assume sorry, heat exchanger as a adiabatic device in which two flowing fluids, one hot obviously because then only heat will be transferred, one hot, another cold, they exchange heat. Okay, so heat transfer takes place from what? Hot fluid to the cold fluid. So heat exchanger is an adiabatic device in which two flowing fluids exchanges heat. Okay, why actually we want that? Why the heat transfer is required between hot and cold fluid guys? Because that may be a requirement of some kind of process heating, process cooling. Suppose you want to heat a particular substance, industry में ऐसा होता है, you want to cool a particular substance, okay, or suppose you want to boil a particular substance, किसी substance को हम liquid से vapor में convert करना चाह रहे हैं, you want to condense a particular substance, so that may be a requirement of a process, means you want to boil, you want to condense, you want to heat a particular substance, you want to cool a particular substance, or it may be a requirement like suppose you want to utilize the energy of waste gases, waste heat. So some kind of heat recovery you want to carry out, so then also you can use a heat exchanger. Those are known as what? Regenerator. Okay, so regenerator, these are also kind of heat exchanger. So the application, the purpose may be different. You want to superheat a particular substance, you want to regenerate, you want to extract the waste heat. Okay, so depending on that there are different types, there are different categorization of heat exchanger. But whether you like if you are observing any of the heat exchanger, there must be two flowing fluids, and the heat transfer, heat exchange is going to take place between those two flowing fluids. So in general we assume heat exchanger as a adiabatic device. Okay, and yes, heat exchanger is a steady flow device guys. Open system है because mass of the fluid is entering, mass of the fluid is leaving, so it is a open system. It's not a closed system, but we assume it as a steady flow open system, steady flow system, what you can say, because it is a flow, not non-flow system नहीं है, it is a flow system because mass entering, mass leaving. But कैसा flow है? Steady flow. Means there is no accumulation of mass or no accumulation of energy is taking place inside the heat exchanger. Whatever mass is entering, that is leaving. Whatever energy is entering, that is energy, that same energy is leaving. There is no energy accumulation, there is no mass accumulation is taking place inside the heat exchanger. That's why using the steady flow energy equation, we can write the enthalpy of a heat exchanger, change in enthalpy of a heat exchanger is zero. Okay, because it is a steady flow device, I am going to tell you from where I am writing this. Change in enthalpy of a heat exchanger is zero. So in general you can write for a heat exchanger change in enthalpy is zero. It means the change in enthalpy of hot fluid, hot, plus change in enthalpy of cold, that is equal to zero, because in heat exchanger what are the flowing fluids? One is hot, another one is cold. So change in enthalpy of entire heat exchanger is zero. It means change in enthalpy of hot plus change in enthalpy of cold is zero. It means the increase in enthalpy of cold fluid, this is the increase guys, increase in enthalpy of cold fluid, that is equal to decrease in enthalpy of the hot fluid. Hot fluid is going to decrease its enthalpy, and cold fluid, the enthalpy is going to increase when the heat transfer is going to take place from hot to cold. Okay, so there are different type of heat exchanger: condenser, evaporator, automobile radiator, preheater, intercooler, regenerator. So these all are the different kind of heat exchanger. So guys, you know, according to first law of thermodynamics, we know we cannot create energy, we cannot destroy energy. The total energy is going to remain conserved. Okay, So for a steady system, as I mentioned, steady का मतलब क्या होता है, कोई भी accumulation नहीं होता, जितना energy enter कर रहा है, energy in that is equal to energy out.
Okay, or what you can say, dE by dt of the control volume is 0. Also, if you were if I write it here, the mass balance, mass is equal to mass amount. किसके लिए? For a steady flow system. तो एनर्जी कौन कौन सा एंटर कर सकता है? काइनेटिक एनर्जी कैन एंटर. Like when a fluid is entering, it can have some kinetic energy, it can have some potential energy with it, it can have some internal energy with it, it can have some flow work. Okay, flow work आपको देना पड़ेगा to enter the fluid into the control volume. Okay, so considering all those energies which a fluid can have when it is entering into the control volume, तो आप क्या लिख सकते हो? According to steady flow energy equation for a heat exchanger, you can write Q minus W equal to change in enthalpy plus change in kinetic energy plus change in potential energy. Okay, so this I am writing using this equation only, guys. H plus half mv square, okay, plus mgz plus q, that is equal to, इसको v1 लिख देते हैं, इसको h1 लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं z1, mgz1. Okay, so mgz1. Similarly, this is equal to what? h2 plus half mv2 square plus mgz2, potential energy at the exit, plus W control volume. Okay, so this is nothing but what? Steady flow energy equation, you know, guys. This is steady flow energy equation. So if there is a steady flow in any open system, you can write this equation. So using this equation only, guys, we are writing Q minus W, that is equal to change in enthalpy plus change in kinetic energy plus change in potential energy. Okay, in general for a heat exchanger we can neglect the kinetic energy changes. So इसको हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं. So this is 0. Change in kinetic energy is 0, neglected. Change in potential energy, neglected. Heat exchanger is a adiabatic device, no heat transfer. Also there is no work transfer is taking place in the heat exchanger. Work transfer is also 0. That's why the change in enthalpy of the entire heat exchanger is 0. What it means? It means decrease in enthalpy of the hot fluid, that is equal to increase in enthalpy of the cold fluid. Or what you can write, how much is the decrease in enthalpy, guys? If you will take this minus inside, actually the change in enthalpy of a hot fluid is what? The final temperature, mc T final minus T initial. But here you are having the negative sign. That's why it will become what? M dot at Cph into what? T initial minus T final. Initial is what? Thi, hot fluid entry temperature. This Th is the hot fluid exit temperature. So when hot fluid is entering in a heat exchanger, it is entering at Thi and it is leaving at The. So this is what? This is representing decrease in enthalpy of the hot fluid. Similarly, what is this term? This is increase in enthalpy of the cold fluid. M dot C Cpc Tce minus Tci. तो एक बार मैं term बता देता हूँ बच्चों, because this equation is very very important for a heat exchanger. This is known as energy balance equation. इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? Energy balance equation for a heat exchanger. लिखा भी हुआ है. You can read it here. This equation is known as energy balance equation for heat exchanger. So m dot h is the mass flow rate of the hot fluid. कितना kg per second hot fluid enter कर रहा है? Cph is the specific heat of hot fluid. Thi is the entry temperature of hot fluid. The is the exit temperature of hot fluid. Obviously, hot का entry temperature will be higher, exit temperature will be lower. Okay, if there is no phase change of the hot fluid is taking place. But अगर phase change हो रहा है तो हो सकता है hot का HI और HE दोनों क्या हो? Same हो. In that case, the heat transfer will be what? Not sensible heat, there will be latent heat transfer. M dot H into latent heat. Okay, so Thi minus Thi. Similarly, m dot C is the mass flow rate of cold fluid. Cpc is the specific heat of cold fluid. Tce is the exit temperature of the cold fluid, and Tci is the entry temperature of the cold fluid. Okay, so this equation is very very important, guys. You know, guys, heat transfer at constant pressure is nothing but change in enthalpy. That's why this particular term, whether you are writing this or whether you are writing this is representing the heat exchange. यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका हीट ट्रांसफर. दिस इज रिप्रेजेंटिंग द हीट ट्रांसफर. ओके, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द हीट ट्रांसफर. सो हीट ट्रांसफर इन ए हीट एक्सचेंजर, कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है हीट एक्सचेंजर में फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, कितना हीट वो लूज कर रहा है, कितना हीट वो ले रहा है. सो द हीट ट्रांसफर इन ए हीट एक्सचेंजर यू कैन राइट as what? M dot at Cph into Thi minus Thi, or that is also equal to m dot say Cpc into Tce minus Tci. Okay, for water के लिए you can remember the specific heat is 4.2 के आसपास होता है. You can write this also 4.187, and specific heat of air is what? 1.005 kilojoule per kg Kelvin. चलिए बच्चों, अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा types of heat exchanger. Guys, there are many different type of heat exchanger we are having, and we can classify heat exchanger on various bases, like the direction of the fluid flow,
and the phase of a particular fluid whether it is changing, okay, or not changing, तो sensible heat transfer हो रहा है, क्या हो रहा है. So there are different classification. तो पहले शुरू करते हैं based on the nature of the heat exchange process कि nature क्या है, how the heat exchange is taking place between hot and cold fluid. Okay, so guys, based on that category there are two type of heat exchanger. One is the direct contact type heat exchanger, another one is indirect contact type heat exchanger. Based on the nature of the heat exchange process you can classify heat exchanger into two types: direct contact, indirect contact. Direct contact का मतलब the hot and cold fluid they are directly coming in physical contact with each other. तो जो hot और cold fluid है they are mixing, actually they are mixing with each other, so there is a direct contact of the hot and cold fluid is taking place. So that kind of heat exchanger, if hot and cold fluid they are coming in direct physical contact with each other, that is known as direct contact type heat exchanger. जो दूसरा category है जिसमें hot and cold fluid they will be separated by some kind of wall or some kind of tube, okay, so some kind of surface is there which is separating the hot and cold fluid, so they are not physically coming in contact with each other. तो उनके बीच में direct contact नहीं है, but what is happening, direct transfer is taking place. So that's why these kind of heat exchangers are known as indirect contact type. इनको indirect contact भी बोल देते हैं या इनको बोल देते हैं direct transfer type. Indirect contact because there is no direct contact between the hot and cold fluid, that's why they are known as direct transfer type. तो यहाँ पे transfer of heat क्या हो रहा है, आपका direct हो रहा है. So direct transfer type they are also known as indirect contact type heat exchanger. और ये क्या है आपके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर. तो कुछ अगर आप एग्जांपल लिखना चाहोगे तो कूलिंग टावर जैसे होता है, कूलिंग टावर में हॉट और कोल्ड, हॉट क्या है आपका वाटर, जो हॉट वाटर आ रहा है आपका टरबाइन से, सॉरी कंडेंसर से, कंडेंसर से जो हॉट वाटर आ रहा है दैट इज अवर वन फ्लूइड. दूसरा फ्लूइड क्या है, एयर, एयर इज द कोल्ड फ्लूइड एंड दे आर कमिंग इन फिजिकल डायरेक्ट मिक्सिंग विद ईच अदर. तो डायरेक्ट उनका कॉन्टैक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई कूलिंग टावर क्या होता है आपका एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर है. ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू अ जेट कंडेंसर. तो ये जेट कंडेंसर का डायग्राम है बच्चों, जिसमें आप देख सकते हो जो आपका हॉट फ्लूइड है, वाटर है, ओके, और जो स्टीम है वो दे आर कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. ओके, तो स्टीम के ऊपर आपने वाटर को स्प्रे कर दिया है तो उससे क्या हो रहा है आपका, दे आर कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ओके, सो डायरेक्टली मिक्सिंग हो रहा है. दैट्स व्हाई जेट कंडेंसर और कूलिंग टावर दे आर द एग्जांपल ऑफ ए direct contact type heat exchanger. Most of the heat exchanger we use like the evaporator, condenser, radiator, shell and tube type heat exchanger, जितने भी जो ज्यादातर जो heat exchanger होते हैं they fall in the category of direct transfer type heat exchanger. चलिए बच्चों नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव करते हैं. अभी जो हमने बात की इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर, तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज टेकिंग प्लेस, तो दो तरह से हीट एक्सचेंज हो सकता है बच्चों. फर्स्ट केस जो होता है जिसमें the hot and cold fluid they are separated by some wall, so this is some hot fluid flowing above, okay, और यहाँ से आपका cold fluid आ रहा है, देखो ये hot fluid यहाँ से enter कर रहा है और यहाँ से cool होके बाहर निकल रहा है hot fluid, और ऊपर से क्या आ रहा है आपका cold medium आ रहा है and it is going out. so ट्यूब के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, hot fluid फ्लो कर रहा है, और शेल साइड पे क्या फ्लो कर रहा है आपका कोल्ड फ्लूइड कर रहा है. तो दे आर नॉट कमिंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, तो इट्स ए इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर. बट हियर एक्चुअली यू आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ मीडियम विच इज एक्चुअली ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड. ये डायरेक्ट ट्रांसफर है. तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के दो टाइप्स हो सकते हैं. एक तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर जहां पे आप हॉट से कोल्ड को डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हो हीट. दूसरा क्या हो सकता है, लाइक सपोज यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ सपोज इंटरमीडिएटर, suppose you are using any kind of intermediator, some kind of high capacity cellulose matrix if you are using, that is suppose picking heat from the hot fluid and then further that matrix is transferring that heat to the cold fluid. So there is no direct transfer taking place. So ये इस टाइप के जो हीट एक्सचेंजर है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जो दूसरा कैटेगरी है उसको हम क्या बोलते हैं, रीजनरेटिव टाइप हीट एक्सचेंजर. सो रीजनरेटिव क्या होते हैं, इफ यू आर यूजिंग indirect contact type heat exchanger you can classify in two types, regenerator और recuperator. तो regenerator कौन से होते हैं जिसमें there is some kind of cellulose matrix, some kind of material which is having very high thermal capacity you are using to take the heat from the hot fluid and then that heat you are transferring to the cold fluid. That those kind of heat exchangers are known as regenerative type heat exchanger. दूसरे क्या है आपके recuperator type. recuperator type में क्या होता है, there is no such medium you are using, directly heat is transferring from hot to cold fluid but no physical direct contact is coming, that's why they are indirect contact type. okay, indirect contact type में कौन सा हो जाएंगे, recuperator type. okay, because there is no such medium you are using, but if you are using any medium that is a kind of what, regenerative heat exchanger. तो regenerative heat exchanger बच्चों बहुत ज़्यादा effective होते हैं, they are having very good effectiveness. okay, heat exchange will also be very much effective but their cost is higher and at the same time
they are generally there is no such continuous motion of the fluid is there. Like suppose first you are through that matrix you are going to pass the hot fluid, and then you will restrict the passage of hot fluid and you will allow the passage of what, cold fluid. So the flow of the fluid is intermittent. First hot is flowing, then you are stopping the flow, then cold is flowing. So that's why that's why this regenerative type is a kind of what what you can say intermittent flow is there. If you want to make it continuous flow, then you need to make some kind of arrangement. आपको उस मैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा by attaching some motor, pulley arrangement, कुछ ना कुछ करके आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा. Then you will have continuous flow. But in इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो रेक्यूपरेटर टाइप है उनमें आपको हमेशा क्या मिलता है, कंटिन्यूस फ्लो मिलता है. इन दिस ऑल्सो यू कैन हैव कंटिन्यूस फ्लो, बट उसके लिए आपको अलग से अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा. दैट्स व्हाई द कॉस्ट बिकम्स मच हायर, बट दे आर मच इफेक्टिव, दे आर वेरी गुड इफेक्ट, हैविंग गुड इफेक्टिवनेस, गुड हीट ट्रांसफर. ओके, सो आई थिंक दीज थिंग्स आर क्लियर. तो एक एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो तो जंगस्टॉर्म एयर प्री हीटर है जो हम गैस टरबाइन में यूज करते हैं बच्चों. Youngstown air preheater which is used in a gas turbine, that is a kind of what, regenerative type heat exchanger. वो कैसा होता है आपका, ये regenerative type है बच्चों. Okay, it's a kind of regenerative type heat exchanger. ठीक है, चलिए. रेक्यूपरेटर तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे इकोनोमाइजर है, एयर प्रीहीटर है, इंटरकूलर है, रेडिएटर है. These are very common type of heat exchanger. Mostly we use these kind of heat exchangers only. Okay, so I feel this category is also very clear. What are recuperative type, what are regenerative type. चलिए next move करते हैं. Type of heat exchanger based on the direction of flow. Guys, if both hot and cold they are flowing in the same direction. अभी वो अगर कहीं फ्लो कर रहे हैं किसी ट्यूब में या किसी पासेज के थ्रू, so if both hot and cold fluid they are flowing in same direction, that kind of heat exchanger is known as a parallel flow heat exchanger. ओके, तो गाइज दिस इज अ प्लॉट बिटवीन टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर है और यहाँ पे है आपका x अलोंग द लेंथ ऑफ द हीट एक्सचेंजर. तो यहाँ पे जस्ट एंट्री हो रही है, सो दिस इज x इक्वल टू 0 एंड दिस इज द एंड ऑफ हीट एक्सचेंजर वेयर x इक्वल टू L. ओके, तो यहाँ पे एंट्री किया, हॉट और कोल्ड ले, दे आर फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन. सो हॉट फ्लूइड the enthalpy is decreasing, cold fluid enthalpy is increasing. So hot fluid के लिए temperature decrease करेगा, cold fluid के लिए temperature increase करेगा, and this kind of temperature profile you will get for a parallel flow heat exchanger. Okay, तो पहला point जो आपको सबसे important नोट करना है, parallel flow heat exchanger में जो ये इसको मैं लिख देता हूँ THI से, hot fluid entry, this is hot fluid exit, this is cold fluid entry TCI, this is cold fluid exit. तो बच्चों पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में जो TCE है, कोल्ड फ्लूइड का जो एग्जिट है, वो हमेशा THE से कम होगा बच्चों. कोल्ड फ्लूइड एग्जिट टेम्परेचर विल ऑलवेज बी लेस देन हॉट फ्लूइड एग्जिट टेम्परेचर. ये लाइन कभी क्रॉस नहीं कर सकती. यू कैन नॉट हैव ए कर्व समथिंग लाइक दिस, ऐसा नहीं हो सकता. दिस इज नॉट पॉसिबल. सो दिस कोल्ड फ्लूइड एग्जिट विल ऑलवेज बी लेस देन व्हाट, THE. इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा हो जाएगा तो बच्चों जितना इसका एंथैल्पी डिक्रीज करेगा उतना ही इसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. ओके, तो यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर चेंज है दैट विल बी ऑलवेज लेसर देन दिस. ओके, तो ये इससे क्रॉस नहीं कर सकता. मैक्स टू मैक्स थ्रोटिकली, दैट इज ओनली थ्रोटिकली व्हाट यू कैन से, मैक्स टू मैक्स थ्रोटिकली इट इज पॉसिबल कि ये यहाँ पे जाके क्या कर जाए कि दोनों का सेम हो जाए. ओके, तो दिस इज ऑल्सो मैक्स टू मैक्स पॉसिबल बट नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. ओके, तो ऑलवेज hot fluid exit, cold fluid exit will be less than hot fluid exit. चलिए, तो ये बच्चों हमने बात की टेम्परेचर प्रोफाइल का, किसके लिए, फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर. सो बोथ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड दे आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन. नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों. सो इफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड दे आर फ्लोइंग अपोजिट टू ईच अदर, सो सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ हॉट फ्लूइड, this is the direction of cold fluid, they are flowing opposite to each other, so that kind of flow arrangement is known as counter flow heat exchanger. Okay, देखो इसको पैरेलल फ्लो को आप को करंट भी बोलते हो. को करंट मतलब उनका जो करंट है, उनका जो फ्लो डायरेक्शन है दैट इज इन द सेम डायरेक्शन, को करंट. इसको क्या बोलते हैं, काउंटर फ्लो या काउंटर करंट. काउंटर फ्लो और काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर. सो द फ्लो डायरेक्शन इज अपोजिट. Hot is flowing in this direction, cold is flowing in this direction, or cold is flowing in this direction, hot is flowing in this direction, something like this. तो आपको पता है बच्चों, हॉट का तो हमेशा टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है. हॉट का एंथैल्पी डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इज गोइंग टू डिक्रीज, एंड हॉट इज हैविंग मोर हाई टेम्परेचर देन कोल्ड फ्लूइड. तो ऊपर वाला कर्व किसके लिए होगा, हॉट फ्लूइड के लिए. सो हॉट फ्लूइड एंथैल्पी इज गोइंग टू डिक्रीज. नाउ इन दिस केस हॉट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, कोल्ड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. तो ये क्या है आपका कोल्ड का एंट्री TCI, और ये क्या है आपका कोल्ड का एग्जिट.
ये है आपका होट का एंट्री THI, ये वाला पॉइंट, और ये क्या है आपका होट का एग्जिट. Okay, so in this heat exchanger guys, counter flow heat exchanger में it is possible to have exit temperature of the cold fluid greater than exit temperature of hot fluid. So this is possible. ये क्या है? Possible है. This is possible. Okay, but in the previous case parallel flow that is not possible. Okay, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ बच्चों, जो LMTD होता है, we are going to discuss what is LMTD. जो LMTD होता है काउंटर का, काउंटर फ्लो का, डेल्टा टी एम LMTD. सो डेल्टा टी एम जो होता है काउंटर का, काउंटर दैट आई एम राइटिंग बाय C, वो ज्यादा होता है किससे? डेल्टा टी एम पैरेलल से. इन जनरल डेल्टा टी एम ऑफ काउंटर of is more than delta Tm parallel for same inlet and exit condition, exit temperature of the hot and cold fluid. Same inlet and exit condition, यहाँ लिख भी लो, same inlet and exit temperature for same inlet and exit temperature of hot and cold. ठीक है बच्चों. सो आई होप दिस टेम्परेचर प्रोफाइल इज ऑल्सो वेरी क्लियर फॉर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर. अब देखो बच्चों, फ्लो में भी क्रॉस ऑल्सो, फ्लो क्रॉस फ्लो भी हो सकता है कुछ ऐसा. देखो हॉट एंटर कर रहा है, अब ये क्या है? इट्स ए काइंड ऑफ मिक्स्ड फ्लो. ये कैसा है आपका? एक मिक्स्ड फ्लो है. ये कैसा आपका? एक क्रॉस फ्लो है. तो फ्लो में भी मिक्स्ड फ्लो ऑल्सो, फ्लो में भी क्रॉस फ्लो ऑल्सो. सो द कैटेगराइजेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर यू कैन हैव पैरेलल based on the direction of fluid flow, parallel, counter, cross flow means if one fluid is flowing in this direction, another fluid is flowing in the transverse direction. Okay, so they are not parallel, they are not opposite, they are, one is in this direction, another one is the transverse direction. So that kind of heat exchanger is known as cross flow heat exchanger. इसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्रॉस फ्लो. ओके, और ये क्रॉस फ्लो में मिक्स्ड स्ट्रीम भी हो सकती है, अनमिक्स्ड स्ट्रीम भी हो सकती है. सो दिस इज एक्चुअली व्हाट मिक्स्ड फ्लो हीट एक्सचेंजर. तो ये क्या आपका मिक्स्ड फ्लो हीट एक्सचेंजर एंड दिस इज व्हाट क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर. ओके, तो हीट एक्सचेंजर की एनालिसिस हमारे पास नहीं आती, एंड यू नीड नॉट टू कैरी आउट एनी एनालिसिस ऑफ दिस काइंड ऑफ हीट एक्सचेंजर. वी नीड टू ऑब्जर्व ओनली पैरेलल एंड काउंटर. इनके लिए हम क्या करते हैं? सम काइंड ऑफ करेक्शन फैक्टर वी यूज. सपोज यू इवैल्यूएटेड सम LMTD फॉर ए काउंटर एंड यू वांट LMTD फॉर ए क्रॉस फ्लो. सो बाय कैलकुलेटिंग द LMTD ऑफ काउंटर यू कैन मल्टीप्लाई दैट विद सम काइंड ऑफ करेक्शन फैक्टर एंड यू कैन इजीली गेट द LMTD फॉर ए क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर. तो डायरेक्ट एनालिसिस हमें इसका नहीं करना है. वी नीड टू कैरी आउट एनालिसिस ऑफ पैरेलल एंड काउंटर ओनली. चलिए देखो बच्चों, टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर वी कैन क्लासिफाई बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ फ्लूइड आल्सो. फिजिकल स्टेट ऑफ द फ्लूइड. Suppose if one of the fluid is changing its phase from vapor to liquid. अगर कोई fluid condense हो रहा है बच्चों, कंडेंसर का मतलब क्या होता है? फेज चेंज होगा. इवोपरेटर में भी फेज चेंज होगा. इन कंडेंसर फेज चेंज विल टेक्स प्लेस फ्रॉम व्हाट? वेपर टू लिक्विड. कोई एक लिक्विड क्या करेगा? कोई एक फ्लूइड क्या करेगा? कंडेंस हो जाएगा. As the name itself is describing, one of the fluid is going to change its phase from vapor to liquid, condense होगा. इवोपरेटर, या इसको मैं बॉयलर बोल देता हूँ, इवोपरेटर बॉयलर, इसमें क्या होगा? वन ऑफ द फ्लूइड इज गोइंग टू चेंज इट्स फेज फ्रॉम व्हाट? लिक्विड टू वेपर. तो यहाँ पे भी फेज चेंज होगा, बट जो फ्लूइड है वो फेज चेंज करेगा कहाँ से कहाँ? लिक्विड टू वेपर. अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, व्हेन ए फ्लूइड इज चेंजिंग इट्स फेज, वन ऑफ द फ्लूइड इज चेंजिंग इट्स फेज फ्रॉम वेपर टू लिक्विड, इट इज गोइंग टू टेक द हीट और इट इज गोइंग टू लिबरेट द हीट. वो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब हीट लेगा या हीट देगा. तो फ्लूइड इज चेंजिंग इट्स फेज फ्रॉम वेपर टू लिक्विड, मतलब उसको हीट चाहिए नहीं. ही इज हैविंग द फ्लूइड इज हैविंग मोर एंथैल्पी. उसको एंथैल्पी क्या करना है? वो रिलीज करना है, उसको एंथैल्पी कम करना है, मतलब उसमें से हीट आपको निकालना पड़ेगा. तो ये जो फ्लूइड होगा कंडेंसर में, जिस फ्लूइड का फेज चेंज हो रहा है, दैट इज ए हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड. ये हॉट फ्लूइड होगा या कोल्ड होगा? सर ऑब्वियसली ये हॉट ही हो सकता है, बिकॉज कोल्ड तो हो नहीं सकता, बिकॉज इसको हीट देना है. हीट देना है तो ये हाई टेम्परेचर पे है, जो कोल्ड होगा वो लो पे होगा. सो ये क्या है? हमारा हाई टेम्परेचर फ्लूइड. अगर ये बात आपके समझ में आ गई, देन सर टेम्परेचर प्रोफाइल अगर हमें बनाना है कंडेंसर का, टेम्परेचर प्रोफाइल फॉर द कंडेंसर विल बी वेरी इजी. हम यहाँ क्या कर सकते हैं? फर्स्ट वी कैन ड्रॉ ए लाइन. कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ये लाइन क्या दिखा रहा है अपने को? फेज चेंज. किसका? हॉट का. हॉट फ्लूइड इज गोइंग टू चेंज द फेज. कंडेंसर के अंदर एक बात समझ लो हमेशा, कंडेंसर के अंदर देयर विल बी फेज चेंज ऑफ द हॉट फ्लूइड. बॉयलर के अंदर, इवोपरेटर के अंदर देयर विल बी चेंज इन फेज ऑफ द कोल्ड फ्लूइड. कोल्ड फ्लूइड का फेज चेंज कहां पे होगा? इवोपरेटर में. हॉट फ्लूइड का फेज चेंज कहां पे होगा? कंडेंसर में. और अगर ये बात समझ में आ गई तो देन यहां पे तो जो हॉट दिखाओगे आप, यहां पे हॉट दिखाओगे ऊपर, कोल्ड कहां दिखाओगे? नीचे. अब दो अरेंजमेंट हो सकती हैं. अरेंजमेंट में भी लाइक दिस
ऐसा एक अरेंजमेंट हो सकता है जो आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये कौन सा अरेंजमेंट है? पैरेलल फ्लो का अरेंजमेंट कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये किसका अरेंजमेंट है? ये अरेंजमेंट है काउंटर का। तो होट ऊपर होगा और उसका फेस चेंज होगा। फेस चेंज ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बच्चों फेस चेंज हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। फेस चेंज जब होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, और टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा तो यू विल हैव ए स्ट्रेट लाइन। तो होट इज चेंजिंग इट्स फेस, तो यू विल हैव ए स्ट्रेट लाइन अबव। नीचे क्या होगा? कोल्ड फ्लूइड जिसका सेंसिबल हीट ट्रांसफर होगा। इट इज गोइंग टू टेक हीट फ्रॉम द होट, होट से हीट लेगा, ओके, और उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सो द अरेंजमेंट में भी काउंटर, ये काउंटर फ्लो कंडेंसर है जो ऊपर आपको दिख रहा है। ये कौन सा है? ये काउंटर फ्लो कंडेंसर है। और ये कौन सा कंडेंसर है बच्चों? दिस इज ऑल्सो कंडेंसर, बिकॉज हॉट से आपका हीट आ रहा है कोल्ड में, दिस इज ऑल्सो कंडेंसर। बट ये कौन सा कंडेंसर है? पैरेलल फ्लो, ओके, ये है आपका पैरेलल फ्लो कंडेंसर। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है। सिमिलरली इवोपरेटर में कोल्ड फ्लूइड इज गोइंग टू चेंज इट्स फेस। जैसा कि आप देख पा रहे हो, कोल्ड फ्लूइड क्या है? ये लाइन, स्ट्रेट लाइन नीचे वाले की। अब ये अरेंजमेंट पैरेलल हो सकता है, अरेंजमेंट काउंटर हो सकता है। तो अगर इसका फेस चेंज हो रहा है, सो इट इज गोइंग टू टेक द हीट। अगर ये हीट लेगा होट से, तो होट का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली होट का टेम्परेचर तो घटना चाहिए। तो ये कोल्ड फ्लूइड है, होट का टेम्परेचर अगर घटेगा तो यू विल हैव ए टेम्परेचर प्रोफाइल समथिंग लाइक दिस। सो इट इज टेकिंग हीट नाउ फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, बिकॉज ऊपर वाला हमेशा हॉट होता है बच्चों, तो हॉट से कोल्ड में हीट आ रही है, कोल्ड इज चेंजिंग इट्स फेस। सो दिस इज व्हाट पैरेलल फ्लो इवोपरेटर। इवोपरेटर का अरेंजमेंट काउंटर भी हो सकता है कुछ ऐसा, ओके। तो हॉट फ्लूइड फेस चेंज कर रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, सॉरी कोल्ड फ्लूइड इज चेंजिंग इट्स फेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और हॉट फ्लूइड क्या कर रहा है? उसको हीट दे रहा है जस्ट टू चेंज दैट फेस फ्रॉम व्हाट? लिक्विड टू वेपर, ओके। सो दिस इज द टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ व्हाट? काउंटर फ्लो इवोपरेटर। दिस इज काउंटर फ्लो इवोपरेटर। ये क्या है आपका? पैरेलल फ्लो इवोपरेटर। दिस इज पैरेलल फ्लो इवोपरेटर। दिस इज व्हाट? दिस इज पैरेलल फ्लो कंडेंसर, दिस इज काउंटर फ्लो कंडेंसर। तो ये टेम्परेचर प्रोफाइल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। आपको आइडिया होना चाहिए कि टेम्परेचर कैसे प्रोफाइल बनाना है कंडेंसर का, इवोपरेटर का, पैरेलल फ्लो कंडेंसर का, काउंटर फ्लो कंडेंसर का, पैरेलल फ्लो इवोपरेटर का और काउंटर फ्लो इवोपरेटर का। चलिए अभी नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एनालिसिस ऑफ ए हीट एक्सचेंजर। गाइस अगर आपने हीट ट्रांसफर में पढ़ा है तो आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, Q इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइड बाय समेशन ऑफ ऑल थर्मल रेजिस्टेंसेस। एक एनालॉजी है, देयर इज एनालॉजी रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ड्यू टू वोल्टेज डिफरेंस करंट फ्लो करता है, तो करंट फ्लो कितना होता है? करंट इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सिमिलरली ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस क्या फ्लो करता है? हीट फ्लो करता है। तो कोई भी वायर है वो कंडक्शन आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफर करती है। सिमिलरली डिफरेंट कंपोनेंट्स दे ऑफर सम थर्मल कंडक्शन रेजिस्टेंस। सो जो Q है, कितना हीट फ्लो कर रहा है किसी कंपोनेंट के थ्रू, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी, टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अगर एक ही कंपोनेंट है तो एक रेजिस्टेंस होगा, अगर कई सारे कंपोनेंट है, दे आर इन सम कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज में है, पैरेलल में है, सो यू नीड टू राइट द टोटल समेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंसेस। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? दिस वी कैन राइट इट एज लाइक दिस आल्सो, UA डेल्टा टी, UA डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज द सेम डेल्टा टी जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है, बट ये UA क्या है बच्चों? ये U होता है आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और A है आपका एरिया, ओके। और एक रिलेशनशिप होता है आपका U में और इसमें, जो UA है, ओके, 1/UA, 1/UA जो होता है बच्चों, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल थर्मल रेजिस्टेंसेस। 1/UA, U इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी देखने वाले हैं। सो रिलेशनशिप क्या है? 1/UA इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल थर्मल रेजिस्टेंसेस। सो गाइस अगर आपको हीट ट्रांसफर निकालना है हीट एक्सचेंजर में, सो यू कैन राइट इट एज UA डेल्टा टी। अब U क्या है? ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जो कि हम निकाल सकते हैं। A क्या है? एरिया। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड। बट दिक्कत क्या है हीट एक्सचेंजर में? द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड इज नॉट सेम। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? कुछ अलग है। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बच्चों? दिस इज डेल्टा टी आई, एंट्री पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है। और ये जो डेल्टा टी आई है पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए जो डेल्टा टी आई है, दैट इज नथिंग बट THI माइनस TCI। इसका हॉट का एंट्री, कोल्ड का एंट्री, ये क्या है? डेल्टा टी आई, टेम्परेचर डिफरेंस एट द एंट्री। टेम्परेचर डिफरेंस एट द एग्जिट, जिसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा TE से, डेल्टा TE। और ये कितना है? दिस इज नथिंग बट THE माइनस TCE, टेम्परेचर डिफरेंस एट द एग्जिट, ओके। तो
ये जो है बच्चों, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन हॉट एंड कोल्ड, दैट इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, दैट इज चेंजिंग। सो दैट्स वाई अपने को क्या चाहिए होता है, अपने को चाहिए होता है कुछ मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, डेल्टा टी एम, और इसी को क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो अब कोई एक टेम्परेचर तो डिफरेंस तो नहीं है हॉट और कोल्ड के बीच में, सो वी वांट व्हाट, सम लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस. If we will consider that mean temperature difference in a heat exchanger, that is also going to give us same heat transfer, that is actually given by variable temperature difference. So एक बार definition पढ़ते हैं इसका. LMTD, logarithmic mean temperature difference, it is defined as the temperature difference which if constant and would give the same amount of heat transfer as actually given by the variable temperature difference. So ये भी अपने को same heat transfer देने वाला है. So we are considering a constant temperature difference, but that is what, that is the average of this and this temperature difference, that is known as logarithmic mean temperature difference, which is also going to give us the same heat transfer if considered, okay, in comparison to what, a variable temperature difference. So ये delta T जो temperature difference है between hot and cold fluid, उसको हम किससे represent करते हैं, mean temperature difference, logarithmic mean temperature difference. Okay, अब देखो इसका डेरिवेशन तो आपको करने की जरूरत नहीं है, एलएमटीडी का डेरिवेशन पैरेलल के लिए, काउंटर के लिए डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है. सिर्फ इतना समझ लो कि अगर आप इसको डिराइव करोगे, यू विल गेट सम फॉर्मूला, डेल्टा टी एम इक्वल टू डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी ई डिवाइड बाय एल एन ऑफ डेल्टा टी आई बाय डेल्टा टी ई. ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है बच्चों, जो कि मैं यहां लिख देता हूं एक बार. चलिए मैं इसको यहां पे शो कर देता हूं आपको. यस, डेल्टा टी एम जो होगा आपका वो ये होगा बच्चों, डेल्टा टी एम एल एम टी डी इक्वल टू डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी बाई एल एन ऑफ डेल्टा टी आई बाई डेल्टा टी. दिस इज सेम फॉर बोथ, द फॉर्मूला इज सेम फॉर बोथ पैरेलल एंड काउंटर. एल एम टी डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट एल एम टी डी इज नॉट सेम. एल एम टी डी इन जनरल इज मोर फॉर काउंटर फ्लो इन कंपेरिजन टू पैरेलल फ्लो. तो डेल्टा टी एम का फॉर्मूला सेम है, डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी बाई एल एन ऑफ डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी. वाई फॉर्मूला इज सेम बट वैल्यू इज नॉट सेम. बच्चों अगर आप काउंटर की बात करेंगे तो काउंटर पे ये क्या है आपका x0, तो यहाँ पे मैं एंट्री मान रहा हूँ, ये है आपका x इक्वल टू एल, ये मैं एग्जिट मान रहा हूँ. तो हालांकि यहाँ पे हॉट यहाँ से एंटर कर रहा है, हॉट यहाँ से लीव कर रहा है, यहाँ से कोल्ड एंटर कर रहा है, कोल्ड लीव कर रहा है. तो मैं लिख रहा हूँ डेल्टा टी आई एट x इक्वल टू 0. डेल्टा टी आई मतलब ये एंट्री पे है, डेल्टा टी ई मतलब जो एग्जिट पे है. तो मैं हमेशा जो लेफ्ट साइड पे टेम्परेचर डिफरेंस है उसको मैं लिखने वाला हूं डेल्टा टी आई से, राइट साइड पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको मैं लिखने वाला हूं डेल्टा टी ई से. तो डेल्टा टी आई काउंटर में, बिकॉज दिस इज अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, तो काउंटर में डेल्टा टी आई क्या होगा बच्चों, टी एच आई हॉट फ्लूइड एंट्री माइनस कोल्ड फ्लूइड एग्जिट, और डेल्टा टी ई क्या होगा इस केस में, हॉट फ्लूइड एग्जिट माइनस कोल्ड फ्लूइड एंट्री. ये डेल्टा टी आई और डेल्टा टी ई होंगे. बट ये डेल्टा टी आई और डेल्टा टी ई इन केस ऑफ पैरेलल फ्लो क्या थे बच्चों, देखो पैरेलल फ्लो में डेल्टा टी आई क्या था, टी एच आई माइनस टी सी आई, और डेल्टा टी ई क्या था पैरेलल में, टी एच ई माइनस टी सी ई. सो दीज वैल्यूज आर डिफरेंट गाइज, वैल्यूज डिफरेंट है, ओके, वैल्यूज आर डिफरेंट, बट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एलएमटीडी सेम फॉर बोथ पैरेलल एंड काउंटर फ्लो. तो बच्चों अगर आप एक अरेंजमेंट लें, अगर मैं आपको एक केस दूं, लाइक सपोज जस्ट टेक ए केस ऑफ पैरेलल एंड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर फॉर द सेम इनलेट एंड एग्जिट कंडीशन. तो एक केस मान लेते हैं, सेम इनलेट और एग्जिट कंडीशन के लिए एक केस मान लेते हैं पैरेलल और काउंटर में. मान लीजिए हॉट आपका एंटर कर रहा है 100 पे, लीव कर रहा है 70 पे, 70 पे लीव कर रहा है. कोल्ड आपका एंटर कर रहा है 30 पे, लीव कर रहा है 60 पे. So this is hot, this is cold. Hot is entering at 100, leaving at 70. Cold is entering at 30 डिग्री सेल्सियस, leaving at 60 डिग्री सेल्सियस. तो ये पैरेलल है आपका. सिमिलरली काउंटर में अरेंजमेंट मान लेते हैं, सेम कंडीशन, एंटर कर रहा है 30 पे, लीव कर रहा है 60 पे. कोल्ड इज एंटरिंग एट 30, लीविंग एट 60. हॉट इज एंटरिंग एट 100 एंड लीविंग एट 70. So this is the arrangement of what, parallel and counter flow for same inlet and exit conditions. तो अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा टी एम पैरेलल, डेल्टा टी एम पैरेलल, पैरेलल के लिए, तो डेल्टा टी एम पैरेलल क्या होगा बच्चों, डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी ई डिवाइड बाय एल एन ऑफ डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी ई. तो यहाँ पे डेल्टा टी आई क्या है, इसका और इसका टेम्परेचर डिफरेंस देखो कितना आएगा. व्हाट इज डेल्टा टी आई इन दिस केस, दिस इज 70, ये वाला जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये क्या है डेल्टा टी आई, कितना है 70. तो 70 माइनस हाउ मच इज डेल्टा टी ई, डेल्टा टी कितना है 70 माइनस 60, दैट इज 10 डिवाइड बाय एल एन ऑफ
70/10। इससे आपका LMTD आ जाएगा पैरेलल का। सिमिलरली यू कैन चेक LMTD ऑफ काउंटर ऑल्सो। LMTD काउंटर का निकाल लो। काउंटर का क्या आएगा? डेल्टा टी आई। डेल्टा टी आई कितना है यहाँ पे? इसका और इसका टेम्परेचर डिफरेंस 40 माइनस डेल्टा टी ई 40। तो ये जो अरेंजमेंट है एक्चुअली, इस अरेंजमेंट में ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो इस केस में जो डेल्टा टी एम है वो 40 ही हो जाएगा, बिकॉज एवरीवेयर द टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम। तो ऐसा होता है। दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ LMTD जो मैं आपको बताऊंगा। आई हैव टेकन सम रैंडम टेम्परेचर वैल्यूज, सो वी आर गेटिंग दिस डेल्टा टी आई इक्वल टू डेल्टा टी ई। तो काउंटर फ्लो में जब भी डेल्टा टी आई एंड डेल्टा टी ई सेम होते हैं तो जो डेल्टा टी आई है या डेल्टा टी ई है दैट बिकम्स LMTD। सो इस केस में दिस डेल्टा टी एम इज 40। ओके, आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। यू कैन कैलकुलेट डेल्टा टी एम फॉर पैरेलल एंड यू आर गोइंग टू फाइंड आउट वैल्यू लोअर देन 40। सो दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड फॉर द सेम इनलेट एंड एग्जिट कंडीशन डेल्टा टी एम काउंटर का इज ऑलवेज मोर देन डेल्टा टी एम ऑफ पैरेलल। यू कैन ऑल्सो टेक एनी रैंडम वैल्यूज एंड यू कैन चेक गाइस। ओके, तो इन जनरल डेल्टा टी एम काउंटर इज मोर एज कंपेयर टू द डेल्टा टी एम पैरेलल फॉर सेम इनलेट एंड exit condition. So guys, this is the way to calculate LMTD. The formula is same, but the value will come out different for parallel and counter flow heat exchanger. Why actually I'm taking this 40, that I'm going to discuss with you. Separate case, special case is there. Okay, so let me read it for you guys. LMTD is same for both, formula is same, but the value will be different. Okay, because delta T and delta TE are different for parallel and counter flow. So conclusion क्या है बच्चों? For the same hot and cold fluid temperature. Okay, अब आपको मैंने क्या बताया? डेल्टा टीएम किसके लिए ज्यादा होता है? डेल्टा टीएम काउंटर इज मोर एज कंपेयर टू डेल्टा टीएम पैरेलल। तो अगर डेल्टा टीएम काउंटर ज्यादा है बच्चों तो Q क्या होता है? Q इक्वल टू UA डेल्टा टीएम। ओके, सो इफ यू आर कंपेयरिंग पैरेलल एंड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर फॉर सेम एरिया, सेम इनलेट एंड एग्जिट कंडीशन ऑफ द हॉट फ्लूइड, तो अगर एरिया सेम है, सेम इनलेट और एग्जिट कंडीशन है, तो डेल्टा टीएम काउंटर विल बी मोर। तो क्यू हीट ट्रांसफर विल बी मोर इन केस ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। काउंटर फ्लो में हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यस और नो? एंड इफ यू आर कंपेयरिंग हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड फॉर द सेम इनलेट एंड एग्जिट कंडीशन एंड सेम हीट ट्रांसफर सेम, इनलेट एग्जिट कंडीशन सेम है, तो डेल्टा टीएम काउंटर विल बी मोर। तो जो एरिया रिक्वायर्ड होगा काउंटर फ्लो में दैट विल बी लेसर। व्हाई? बिकॉज दिस इज सेम, क्यू इज सेम, U is same, delta TM is counter more, तो एरिया रिक्वायर्ड विल बी लेसर इन काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो दो तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। पैरेलल काउंटर फॉर द सेम एरिया, सेम इनलेट कंडीशन, हीट ट्रांसफर विल बी मोर इन द काउंटर फ्लो। For the same inlet and exit condition of the hot and cold fluid, for the same heat transfer, the area required in the counter flow will be lesser as compared to the area of parallel flow heat exchanger. And why actually all these things are happening? Because the delta Tm of counter is always more than delta T of parallel for the same inlet and exit conditions. Okay बच्चों, तो ये conclusion I hope it is very clear to you. तो ये हम already discussion कर चुके हैं comparison का। अब देखो एक स्पेशल केस क्या है? दो स्पेशल केस है। तो पहला स्पेशल केस क्या है? When one of the fluid is changing its phase. एक फ्लूइड क्या कर रहा है? फेज चेंज कर रहा है। सो दैट मे बी ए केस ऑफ बॉयलर। अब ये क्या है बच्चों? कैन यू टेल मी? दिस इज इवोपरेटर और कंडेंसर। ये इवोपरेटर है, कंडेंसर है। किस फ्लूइड का फेज चेंज हो रहा है? हॉट का या कोल्ड का? सर ऊपर वाला तो हॉट होता है, ये हॉट है, ये हॉट का फ्लूइड है सर। दिस इज THO हॉट, दिस इज THO हॉट का टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। दिस इज रिजेक्टिंग हीट टू व्हाट? कोल्ड फ्लूइड। कोल्ड फ्लूइड को हीट ट्रांसफर कर रहा है। तो ये क्या होना चाहिए सर? हॉट फ्लूइड का फेज चेंज हो रहा है, मींस डेफिनेटली इट इज ए कंडेंसर। ये क्या होगा? कंडेंसर होगा। ठीक है, सो दिस इज पैरेलल फ्लो कंडेंसर, दिस इज अ डायग्राम टेम्परेचर प्रोफाइल फॉर काउंटर फ्लो कंडेंसर। ओके, तो यहां पे ये क्या है आपका? TCI, ये आपका TCE, यहां पे ये THO है, ये है आपका THO, ये है आपका TCI, ये है आपका TCE। तो अगर आप LMTD निकालोगे, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द LMTD, तो क्या होगा? THI माइनस THE डिवाइड बाय THI माइनस THE। आप लिखना चाहो तो लिखो। देखो डेल्टा TM, दिस इज THI, ये वाला टेम्परेचर डिफरेंस THI, डेल्टा TI लिख देता हूं मैं इसको। दिस इज व्हाट? दिस इज डेल्टा TE। तो अगर आप यहां देखोगे ना बच्चों, जो यहां पे डेल्टा TI है वो यहां पे डेल्टा TE है, जो यहां पे डेल्टा TE है वो यहां पे डेल्टा TI है। सो LMTD इज गोइंग टू कम आउट सेम।
Why? Because LMTD is delta T I minus delta T divided by ln of delta T I by delta T E. तो ऊपर माइनस आएगा बट नीचे भी तो माइनस आएगा अगर जब आप रेशो लोगे. ओके, सो यू कैन टेक एनी वैल्यू, एक वैल्यू ले लीजिए. फॉर एग्जांपल जस्ट टेक इट एज 100 और इसको मान लीजिए 30, इसको मान लीजिए फॉर एग्जांपल 50. यहाँ भी ले लीजिए 30, 50 और ऊपर वाला टेम्परेचर क्या है 100. Just check it out the LMTD. This case, both will come out same. So that you need to remember, and you can check it here. This temperature profile, they are like the mirror images of each other. ये एक दूसरे का बिल्कुल exact mirror images है. That's why if one of the fluid is changing its phase, whether it is a case of boiler, whether it is a case of condenser, if one of the fluid is changing its phase, LMTD of parallel will be always equal to LMTD of counter. But in general, LMTD counter का ज़्यादा होता है if only sensible heat transfer is taking place and both inlet and exit condition same. But यहाँ पे inlet exit condition यहाँ पे भी same है बच्चों. Okay, but one of the fluid is changing its phase. तो अगर किसी एक fluid का phase change हो रहा है, even for same temperature conditions, delta Tm parallel that is equal to delta Tm counter. दोनों का delta Tm सेम हो जाएगा, दोनों में हीट ट्रांसफर भी सेम होगा अगर दोनों का एरिया एक समान है. तो दोनों के लिए अगर एक समान हीट ट्रांसफर है तो एरिया रिक्वायर्ड विल बी सेम, और दोनों के लिए अगर एरिया सेम है तो दोनों के लिए हीट ट्रांसफर भी क्या होगा, सेम होगा. वाई? बिकॉज देयर LMTD डेल्टा Tm इज सेम, और दोनों की इफेक्टिवनेस भी क्या आने वाली है, सेम आने वाली है. सो दिस इज स्पेशल केस व्हेन वन ऑफ द फ्लूइड इज चेंजिंग इट्स फेस. सो वेदर इट इज अ केस ऑफ बॉयलर, कंडेंसर, दोनों में हीट ट्रांसफर सेम होगा. दूसरा स्पेशल केस क्या है बच्चों? इफ यू आर हैविंग ए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, जिसमें हीट कैपेसिटी रेट हॉट का और कोल्ड का सेम है. देखो m.h CpH, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी. ये क्या आपका हीट कैपेसिटी. आपको पता है Cp क्या होता है? स्पेसिफिक हीट. ओके, स्पेसिफिक हीट किलो जूल पर केजी केल्विन. उसको अगर आपने मास फ्लूइड से मल्टीप्लाई कर दिया तो मास फ्लूइड है तो केजी तो कट जाएगा. यू विल गेट व्हाट, किलो जूल पर सेकेंड केल्विन, तो वाट पर केल्विन आ जाएगा. तो दिस इज व्हाट, दिस इज द थर्मल हीट कैपेसिटी. सो हीट कैपेसिटी, दिस इज हॉट फ्लूइड का हीट कैपेसिटी है. सिमिलरली दिस इज हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड. This is heat capacity of hot, this is heat capacity of cold. I am not saying Cp is same. No, heat capacity of hot and cold fluid is same. Means m.h Cp is that is equal to m.c Cpc. किस में? काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में. तो उस केस में क्या होगा बच्चों, अगर ऐसा है तो अगर आप एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाते हैं यहाँ पे, इफ यू आर राइटिंग द एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, सो इन दिस केस m.h Cph into Thi minus Dhe, that is equal to m.c Cpc into Tce minus Tci. यही होता है एनर्जी बैलेंस. सो दिस विल बी कैंसल आउट बिकॉज बोथ आर सेम. स्पेशल केस है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर व्हेन बोथ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड दे आर हैविंग सेम हीट कैपेसिटी रेट्स. ओके, सो दीज आर हीट कैपेसिटी रेट्स बिकॉज पर सेकंड की टर्म है ना, बिकॉज अगर आप खाली मास से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज हीट कैपेसिटी, बट अगर आप मास फ्लो रेट ले रहे हो दैट इज हीट कैपेसिटी रेट. ओके, सो दीज आर सेम. सो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा एक्सचेंज करते हो तो Thi माइनस Tce दैट इज इक्वल टू Dhe माइनस Tci ऐसा हो जाएगा. मैं इस टर्म को इधर लेके आ रहा हूँ, इसको इधर लेके जा रहा हूँ. व्हाई? बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, डेल्टा Ti इन काउंटर फ्लो, दिस इज रिप्रेजेंटिंग डेल्टा Te इन काउंटर फ्लो गाइस. तो अगर ऐसा है तो काउंटर फ्लो में डेल्टा Ti और डेल्टा Te क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. यू कैन चेक इट हियर. काउंटर फ्लो, hot is entering it here Thi, it is leaving here Dhe, cold is entering here Tci and cold is leaving here Tce. तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा Ti, Thi minus Tce, Thi minus Tce, this is delta Ti. Similarly, what is this temperature difference guys? Dhe minus Tci, this is the delta Te. तो डेल्टा Ti और डेल्टा Te क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. एंड इन दिस केस डेल्टा Tm LMTD बिकम्स इंडिटरमिनेट, ln ऑफ डेल्टा Ti बाय डेल्टा Te. तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा बच्चों. दिस बोथ आर सेम तो यू विल हैव 0. दिस इज व्हाट, बोथ आर सेम so you will have ln of 1 which is also 0, so you will have 0/0 फॉर्म. तो डेल्टा Tm is not 0, so यहाँ से वो इंडिटरमिनेट आ रहा है. ओके, तो 0/0 फॉर्म है तो इसको हम सोल्व करते हैं एल हॉस्पिटल रूल से. यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल बस आपको इतना याद रखना है, काउंटर फ्लो में जब भी
बोथ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड इफ दे आर हैविंग सेम हीट कैपेसिटी रेट, तो डेल्टा टी आई जो है या डेल्टा टी ई जो है वही क्या बन जाता है आपका टेम्परेचर डिफरेंस, लोगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, जो कि आप यहां देख भी सकते हो। हॉट और कोल्ड में जो टेम्परेचर डिफरेंस है इस स्पेशल केस में वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। हर जगह पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, दैट इज डेल्टा टी एम। ओके, और वो डेल्टा टी एम कितना है, दैट इज डेल्टा टी आई डेल्टा टी, एंड यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट ए काइंड ऑफ टू पैरेलल लाइंस। आपको जो टेम्परेचर प्रोफाइल मिलेगा ना उसमें हॉट और कोल्ड की यू आर गोइंग टू गेट टू पैरेलल लाइंस। ओके, समथिंग लाइक टू पैरेलल लाइंस यू आर गोइंग टू गेट, एंड एवरीवेयर टेम्परेचर डिफरेंस विल बी व्हाट, डेल्टा टी आई डेल्टा टी, और उसका एवरेज भी क्या आने वाला है, डेल्टा टी आई आने वाला है बच्चों, बिकॉज एवरीवेयर टेम्परेचर डिफरेंसेस डेल्टा टी आई और डेल्टा टी ई, और वही क्या बन जाएगा हमारा LMTD फॉर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर व्हेन बोथ एंड हॉट फ्लूइड आर हैविंग सेम हीट कैपेसिटी रेट। चलिए बच्चों, आई होप दिस केस इज आल्सो वेरी क्लियर टू यू। फाउलिंग की बात करते हैं, फाउलिंग ऑफ हीट एक्सचेंजर। बच्चों हीट एक्सचेंजर में बहुत सारे रीजन की वजह से फाउलिंग हो जाता है। समटाइम सम काइंड ऑफ ऐश की वजह से, स्केलिंग की वजह से, बायोलॉजिकल फाउलिंग की वजह से, या सम काइंड ऑफ पार्टिकल का जो सस्पेंशन है दैट इज नोन एज पार्टिकुलेट फाउलिंग, तो वो सस्पेंड कर जाते हैं, उसकी वजह से फाउलिंग हो जाता है। सो देयर आर मेनी रीजंस। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस, फाउलिंग इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ लेयर फॉर्मेशन इन ए हीट एक्सचेंजर व्हेन यू आर कंटिन्यूसली पेरियोडिकली यूजिंग ए हीट एक्सचेंजर। और वो जो एडिशनल लेयर है, दैट लेयर विच इज फॉर्मिंग इनसाइड द ट्यूब्स ऑफ ए हीट एक्सचेंजर और आउटसाइड द ट्यूब ऑफ ए हीट एक्सचेंजर, ड्यू टू दैट लेयर some kind of additional resistance will came into the picture। अभी अगर हीट एक्सचेंजर क्लीन है तो वहां पे तीन ही रेजिस्टेंस आएंगी, कौन सी, इनसाइड कन्वेक्शन, आउटसाइड कन्वेक्शन एंड द कंडक्शन रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब। बट ड्यू टू फाउलिंग one layer is forming in the tube for example, and that layer is going to offer additional resistance, that is known as what, fouling। मतलब हीट एक्सचेंजर क्या कर गया, फाउल कर गया। हीट एक्सचेंजर इज ऑफरिंग मोर रेजिस्टेंस टू द हीट ट्रांसफर, एंड इफ देयर इज मोर रेजिस्टेंस टू द heat transfer is going to decrease, and effectiveness of the heat exchanger is also going to decrease। So what we want more effectiveness, we want more heat transfer from the hot to cold। That's why it is required कि आपका heat exchanger foul ना हो। So that's why periodic cleaning of the heat exchanger is required। Okay, so let us go through this। During normal operation of the heat exchanger tubes of a heat exchanger get covered by ash, soot, dust, dirt, scale, etc. That formation of rust or deposition of the fluid impurities, that is known as fouling। ओके, तो इसकी वजह से क्या आता है, एडिशनल लेयर बन जाता है, और वो क्या करता है, एडिशनल थर्मल रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और उसकी वजह से हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डिक्रीज कर जाता है, हीट ट्रांसफर आपका कम हो जाता है। ओके, तो एक फैक्टर होता है बच्चों फाउलिंग फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं, फाउलिंग फैक्टर। इस फैक्टर को अपने को कंसीडर करना पड़ता है जस्ट टू कंसीडर द एडिशनल थर्मल रेजिस्टेंस, टू कंसीडर एडिशनल रेजिस्टेंस, एडिशनल रेजिस्टेंस को कंसीडर करने के लिए अपने को इसको कंसीडर करना पड़ता है बच्चों। ओके, तो जो हम ये टर्म लिख रहे थे ना 1/UA, तो समेशन ऑफ ऑल थर्मल रेजिस्टेंसेस, तो इसमें कंडक्शन कन्वेक्शन आ जाएगा, बट इसमें ये वाला रेजिस्टेंस भी अपने को लेना पड़ेगा, ये वाला रेजिस्टेंस भी अपने को लेना पड़ेगा, कौन सा, जो आपका फाउलिंग की वजह से आ रहा है। ओके, तो एक फाउलिंग फैक्टर अपने को यहाँ पे लेना पड़ता है बच्चों, कुछ ना कुछ फाउलिंग फैक्टर अपने को यहाँ पे लेना पड़ता है। ओके, सो जस्ट टू कंपेंसेट, जस्ट टू कंसीडर द एडिशनल कंडक्शन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फाउलिंग। ओके, तो चलिए अगर आपको फाउलिंग फैक्टर निकालना है किसी हीट एक्सचेंजर के लिए, सो फाउलिंग फैक्टर इज नथिंग बट 1/U dirty minus 1/U clean। ऑब्वियसली U clean जो होगा इज मोर देन U dirty, डर्टी होने के बाद तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज गोइंग टू डिक्रीज, सो दिस टर्म इज मोर, दिस टर्म इज मोर, सो दिस टर्म विल बी लेस, एंड दिस टर्म इज लेस, सो दिस टर्म विल बी मोर, और इनका जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट, दैट इज नोन एज फाउलिंग फैक्टर। सो 1/U dirty, U dirty means the one overall heat transfer coefficient of a heat exchanger when the scale formation has been taken place। Okay, what is 1/U clean? U clean is the overall heat transfer coefficient when the heat exchanger is new, when there is no such scale formation is there। Okay, that is known as what, U clean। So 1/U dirty minus 1/U clean, that is known as what, the difference of that is known as fouling factor। बच्चों there are so many reasons for the fouling। स्केलिंग की वजह से हो सकता है, मेनली ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट, साल्ट डिपोजिशन, तो साल्ट डिपोजिशन की वजह से स्केलिंग हो सकता है। इट में बी ड्यू टू कोरोजन, ओके, जिसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, तो ऑक्साइड लेयर बन जाता है, तो इट में बी ड्यू टू आयरन ऑक्साइड फॉर्मेशन, कोरोजन की वजह से हो सकता है, स्केलिंग की वजह से हो सकता है साल्ट फॉर्मेशन। इट में बी ड्यू टू सम काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन फॉलिंग।
Okay, chemical reaction between the surface and the flowing fluid, it may be due to freezing. मान लीजिए जो fluid है, fluid flow कर रहा है, suppose that is freezing, solidify हो रहा है. Okay, like petroleum products जो क्या होते हैं रिफाइनरी में वो solidify हो जाते हैं. So that is also known as what fouling, freezing fouling. It may be due to biological fouling, means some kind of algae formation हो सकता है. Okay, it may be due to particulate fouling, मतलब जो बहुत ही small size के जो particles हैं, Brownian size particle, like which are having diameter less than this. Okay, having diameter less than this, तो इससे भी कम जिनका डायमीटर होता है 0.001 mm, okay, डायमीटर है बच्चों, तो इससे भी लेस, अगर इससे भी लेस डायमीटर होता है तो those are known as what, Brownian size particles. So if the diameter is less than this, those are known as Brownian size particles. So if there is some kind of suspension of those particles, small size particle is taking place, so they are going to form some layer, that is known as what, particulate fouling. तो particulate fouling में भी fouling एक additional layer बन जाएगा. So वो layer बनने के काफी सारे reason हो सकते हैं. Algae की वजह से हो सकता है, biological fouling, it may be due to particulate fouling हो सकता है, freezing हो सकता है, it may be due to some kind of chemical reaction, या आयरन ऑक्साइड का लेयर बन सकता है, या कोई साल्ट का लेयर बन सकता है. तो देयर आर मेनी रीजंस ऑफ व्हाट, फाउलिंग. नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट. देखो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या होता है, मैंने बताया, इज अ पैरामीटर व्हिच इज कंसीडर्ड जस्ट टू कंपेंसेट, जस्ट टू कंसीडर ऑल रेजिस्टेंसेस इनटू ए सिंगल एंटिटी. तो एक रिलेशनशिप होता है Q इक्वल टू यू ए डेल्टा टी हम लिखते हैं, और Q को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा टी बाय समेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंसेस. यस और नो? तो Q को हम ऐसा लिखना चाह रहे हैं, यू ए डेल्टा टी, जस्ट टू कंसीडर all thermal resistances into a single quantity. We want to write Q equal to UA delta T, but Q तो ये भी होता है delta T by summation of thermal resistance. So if you will compare this and this, what relationship you will get? You will get R thermal equal to 1 by UA. Okay, yeah, 1 by UA equal to what? Summation of thermal resistances. तो heat exchanger में टोटल थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? वन देयर इज इंटरनल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस जो कि होता है 1 by HIAI, दिस इज इंटरनल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस. दूसरा आपका होगा कंडक्शन रेजिस्टेंस ट्यूब का, व्हिच इज नथिंग बट ln ऑफ RO by RI डिवाइड बाय 2 pi KL, कंडक्शन रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब. और थर्ड क्या होगा आपका कन्वेक्शन रेजिस्टेंस आउटसाइड, व्हिच इज 1 by HOAO. Okay, so if you are writing what, internal convection resistance, conduction resistance of the tube, outside convection resistance, so summation of all the thermal resistances, okay, summation of all the thermal resistances is going to give you 1 by UA. Okay, so 1 by UA equal to summation of all thermal resistances. Okay, so from that, comparing that, you can easily get U. तो ये आपको निकालना नहीं आएगा, because किसी भी PSU या स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में they are not going to ask you some question कि आप U निकालो, but they can give you some expression and they can ask you कि which one is the following expression is right for overall heat transfer coefficient. तो आपको पता होना चाहिए overall heat transfer coefficient क्या होता है. It is a parameter which is introduced just to take into account all thermal resistances into a single quantity, single entity. Okay, that is known as overall heat transfer coefficient. But एक चीज क्या ध्यान रखनी है, इसके बीच में और रेजिस्टेंस के बीच में रिवर्स रिलेशनशिप है बच्चों. रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा हीट ट्रांसफर उतना कम होगा, U जितना ज्यादा होगा हीट ट्रांसफर उतना ज्यादा होगा, because U and thermal resistance they are inversely proportional. So it is taking into account all the thermal resistances into a single quantity. But ऐसा नहीं है कि this is actually resistance. No, U is required to be higher. जितना ज्यादा U होगा, more will be the heat transfer, and U when it will be higher when the thermal resistance is lesser. So 1 by UA equal to summation of thermal resistances. तो UA को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं. You can write in terms of UIAI, इनसाइड ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, इनसाइड एरिया, या इसको आप लिख सकते हो आउटसाइड ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, आउटसाइड एरिया. बोथ आर इक्वल. तो चाहे तो आप इसको 1 by UIAI लिख दो या 1 by UOAO लिख दो. Both are equal to what? Summation of all the thermal resistances. So UI is not equal to UO. UI UO equal नहीं होते. Okay, why? Because not AI क्या AO के equal हो सकता है. What is AI? कोई ट्यूब है अगर आपके पास, उसका AI क्या होगा बच्चों? AI होगा 2 pi RI into L. RI मतलब इनसाइड रेडियस, 2 pi RI into L, लेंथ जो है ट्यूब का. उसका आउटसाइड एरिया क्या होगा? दैट विल बी 2 pi RO into L. सो एरियाज आर डिफरेंट, और एरियाज अगर डिफरेंट है तो UI UO भी डिफरेंट होंगे. बट व्हाट इज सेम, द प्रोडक्ट ऑफ UIAI दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ UOAO.
ओके, सो इससे आप इनसाइड यूआई निकाल सकते हैं या आउटसाइड यूआई कोई एक निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे जब आप इनसाइड निकालना है तो ये वाला रिलेशन यूज कर लो, आउटसाइड निकालना है तो ये वाला आप रिलेशनशिप यूज कर सकते हो। बोथ 1/ui और 1/uao बोथ आर इक्वल टू समेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंसेस। तो ये वाला जो क्वांटिटी है बोथ आर सेम गाइस, यू कैन चेक। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ ए हीट एक्सचेंजर। ओके बच्चों, इफेक्टिवनेस ऑफ ए हीट एक्सचेंजर। इफेक्टिवनेस क्या होता है बच्चों? इफेक्टिवनेस इज ए मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ए हीट एक्सचेंजर, हाउ इफेक्टिवली योर हीट एक्सचेंजर इज वर्किंग। सो इफेक्टिवनेस ऑफ ए हीट एक्सचेंजर इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्चुअल हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हीट एक्सचेंजर टू द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हीट एक्सचेंजर। एक्चुअल हीट ट्रांसफर विच इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द हीट एक्सचेंजर टू द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर। अब देखो एक्चुअल हीट ट्रांसफर क्या हो सकता है? दिस यू कैन राइट इट एज m.h cph इंटू thi माइनस THE। इसको आप ये भी लिख सकते हो, और आप इसको ये भी लिख सकते हो m.c cpc इंटू TCE माइनस TCI। This is decrease in enthalpy of the hot fluid, this is increase in enthalpy of the cold fluid. So this is Q actual heat transfer which is taking place. अब Q maximum क्या होता है बच्चों? Maximum heat transfer होता है m.cp small. हॉट या कोल्ड में से दोनों में से किसका m.cp स्मॉल है? दैट यू नीड टू टेक m.cp स्मॉल इनटू मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस THI माइनस TCI। दिस इज Q मैक्स, ये Q मैक्स होता है, दिस इज Q एक्चुअल। अब देखो समझो एक बार, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर जो होगा आपका वो हमेशा स्मॉलर हीट कैपेसिटी फ्लूइड का होगा। मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज जो होगा दैट विल बी ऑलवेज फॉर ए फ्लूइड विच इज हैविंग लोअर हीट कैपेसिटी रेट। ऐसा क्यों? बिकॉज सर हम जानते हैं m.h cph इंटू THI माइनस THE दैट इज इक्वल टू m.c cpc इंटू TCE माइनस TCI। अच्छा मान लीजिए कि ये जो क्वांटिटी है m.h cph, सपोज दिस इज मोर देन दिस, मान लीजिए दिस क्वांटिटी इज मोर देन दिस, अगर ये इससे ज्यादा है, ये वाली क्वांटिटी इससे ज्यादा है, तो टेम्परेचर चेंज क्या होगा हॉट का? दैट विल बी ऑल्सो मोर और लेस देन दिस, दैट विल बी लेस। तो अगर हीट कैपेसिटी जिसका ज्यादा होता है बच्चों, द फ्लूइड विच इज हैविंग मोर हीट कैपेसिटी रेट, उसका टेम्परेचर चेंज कम होगा, एंड द फ्लूइड विच इज हैविंग लोअर हीट कैपेसिटी रेट, उसका टेम्परेचर चेंज ज्यादा होगा। व्हाई? बिकॉज द प्रोडक्ट इज सेम, m.h cph into the change in temperature of hot fluid, m.c cpc of the cold fluid that is equal to change in temperature of the cold fluid। अगर m.h cph is more than m.c cpc, so जो change in temperature है hot का THI माइनस THE, ये कम हो जाएगा किससे? TCE माइनस TCI। तो लॉजिक क्या है बच्चों? जो फ्लूइड का, जिस फ्लूइड का हीट कैपेसिटी रेट कम होता है उसी का टेम्परेचर चेंज ज्यादा होता है। दूसरा चीज, व्हाई वी आर टेकिंग मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज? गाइस वी आर एक्चुअली अज्यूमिंग कि कोल्ड फ्लूइड इज एंटरिंग एट TCI एंड इट इज लिविंग एट THI। दैट इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि कोल्ड एंटर कर रहा है TCI पे, कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है, और लीव किस पे कर रहा है? जो हॉट का एंट्री है। सिमिलरली hot is entering at THI and it is leaving at TCI. That is the maximum thing which we can assume. Maximum temperature change which is possible for hot and cold fluid. So because we want what? Maximum heat transfer. तो maximum heat transfer में what we are assuming कि hot is entering at THI, leaving at TCI. Cold is entering at TCI, leaving at THI. तो cold का temperature change maximum कितना हो जाएगा? THI minus TCI. हॉट का मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज क्या हो जाएगा? THI माइनस TCI। एक ही बात है। और मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज किसके लिए होगा? ऑलवेज फॉर द फ्लूइड विच इज हैविंग मिनिमम हीट कैपेसिटी रेट। ओके, बिकॉज अगर मैक्सिमम हीट कैपेसिटी रेट होगा तो टेम्परेचर चेंज विल बी लेसर। ओके, सो ये आपको याद रखना है। अब देखो इसको हम यूज करके वी कैन राइट द केसेस। मैं दो केसेस यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं केस 1 लिख देता हूँ, ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस 2, केस 2, केस 1। तो केस 1 में मान लेता हूँ, मान लीजिए m.h cph इज लेस देन m.c cpc। मान लीजिए हॉट का m.h cph इज लेस देन दिस, हॉट फ्लूइड इज हैविंग लेसर हीट कैपेसिटी रेट। तो इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगा बच्चों? इफेक्टिवनेस इज व्हाट? m.cp स्मॉल। m.cp स्मॉल किसका है? m.c cpc इंटू THI माइनस TCI। दिस इज व्हाट? Q मैक्सिमम। ये क्या है मेरा? Q मैक्सिमम, m.c cpc स्मॉल। अच्छा ये H आएगा ना बच्चों, दिस इज स्मॉल। स्मॉल कौन सा है? हॉट का स्मॉल है बच्चों, हॉट इज स्मॉलर। तो लेट मी राइट इट हियर, m.h cph,
ओके, सो दिस इज स्मॉल, ये क्या है मेरा स्मॉल है, दिस इज लेस, m dot at cph is lesser than this, so this is m dot cp small into the maximum temperature change, this is q max, और q actual क्या होगा बच्चों, it is better to write this in terms of what, इस टर्म में, why, because so that this term will be cancel out. okay, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, what is q actual, m dot h cph into thi minus the, तो ये टर्म कट जाएंगी, इफेक्टिवनेस बिकम्स व्हाट, THI माइनस THE डिवाइड बाय THI माइनस TCI. तो ये कौन सा केस है, कोई केस वन है जिसमें हॉट फ्लूइड का हीट कैपेसिटी रेट इज लेसर. सिमिलरली अगर कोल्ड का लेसर है, m डॉट C CPC इज लेस देन m डॉट H CPH, तो इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगा बच्चों, इफेक्टिवनेस विल बी m डॉट C CPC m डॉट CP स्मॉल इनटू द मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज THI माइनस TCI. ऊपर Q एक्चुअल किसके टर्म में लिखना चाहिए, इट इज बेटर टू राइट Q एक्चुअल इन टर्म्स ऑफ व्हाट, m डॉट C CPC इनटू TCE minus TCI. Why? So that this term will be cancelled out. So this is the effectiveness, TCE minus TCI divided by THI minus TCI, in which case when the cold heat capacity is lesser. इसमें केस 3 भी बन सकता है. केस 3 क्या है, मान लीजिए दोनों का हीट कैपेसिटी रेट सेम है, m डॉट एट CPH दैट इज इक्वल टू m डॉट C CPC, दोनों का हीट कैपेसिटी रेट क्या है, सेम है. अगर ऐसा है तो THI माइनस THE दैट इज इक्वल टू व्हाट, TCI माइनस TCE, TCE माइनस TCI. अगर ऐसा होगा तो टेम्परेचर चेंज, डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द हॉट दैट इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड, दोनों का टेम्परेचर चेंज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. सो इन दैट केस इफेक्टिवनेस यू कैन राइट आइदर इन दिस टर्म THI माइनस THE डिवाइड बाय मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस THI माइनस TCI, और दिस यू कैन राइट इन दिस टर्म ऑल्सो TCE minus TCI divided by THI minus TCI. So this is what, this is case 3 when both hot and cold fluid they are having same heat capacity rate. Okay, तो effectiveness के लिए मैंने बच्चों आपको 3 cases बताए, when hot is lesser, cold is lesser, both are same, तो you can find out the effectiveness. हालांकि सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, only you need to remember this. You can check easily कि hot का कम है, cold का कम है, and then easily you can find out the formula. तो वो अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, ओनली यू नीड टू रिमेंबर दिस ओनली. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं NTU. गाइस देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी रिलेटेड टू अ हीट एक्सचेंजर व्हिच इज नोन एज नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट. नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, तो NTU जो अपने को साइज ऑफ हीट एक्सचेंजर बताता है, जो बताता है कि कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है. मोर इज द NTU ऑफ हीट एक्सचेंजर, मोर विल बी द हीट ट्रांसफर. जो हीट ट्रांसफर है हीट एक्सचेंजर का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NTU, number of transfer units. So that NTU is talking about the heat transfer only. So NTU is nothing but mathematically it is equal to UA, product of UA, overall heat transfer coefficient, into area of the heat exchanger divided by m dot Cp small. So just remember this relationship. NTU of a heat exchanger is equal to UA, product of UA divided by m dot Cp small. ओके, सो गाइस जो इफेक्टिवनेस होता है ना, इफेक्टिवनेस ऑफ ए हीट एक्सचेंजर, इट इज ऑब्जर्व्ड, इफेक्टिवनेस ऑफ ए हीट एक्सचेंजर इज अ फंक्शन ऑफ NTU एंड C. ये NTU और C का फंक्शन होता है. ऑल्दो इफेक्टिवनेस ऑफ ए हीट एक्सचेंजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NTU. इफेक्टिवनेस ऑफ ए हीट एक्सचेंजर वो NTU के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इफेक्टिवनेस ऑफ ए हीट एक्सचेंजर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C. ये C क्या है बच्चों, दिस इज नोन एज हीट कैपेसिटी रेट रेशियो. हीट कैपेसिटी रेट रेशियो, this is heat capacity rate ratio. Heat capacity rate ratio. So this is nothing but m dot Cp small, m dot Cp small divided by m dot Cp big. Heat capacity rate ratio m dot Cp small divided by m dot Cp big. ये जो C है ना बच्चों, heat capacity rate ratio, ये इसका जो रेंज है, इट इज इन द बिटवीन 0 to 1. ये 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है. तो रेंज ऑफ C इज व्हाट, 0 to 1. हीट कैपेसिटी रेट रेशियो. ओके, देखो ये C जो है वो 0 कब होगा, C जो है वो 0 होगा किसके लिए, बॉयलर एंड कंडेंसर के लिए. बॉयलर एंड कंडेंसर के लिए जब भी किसी एक फ्लूइड का फेज चेंज हो रहा है, तो C क्या होता है, हीट कैपेसिटी रेट रेशियो m डॉट Cp स्मॉल.
जो बिग है, अब जो बिग मतलब मैक्सिमम हीट कैपेसिटी किसका है, जो फ्लूइड विच इज चेंजिंग इट्स फेस, बिकॉज उसको आप हीट उसमें से उसको दे रहे हो इन केस ऑफ व्हाट बॉयलर, उसमें से ले रहे हो इन केस ऑफ व्हाट कंडेंसर, but that temperature of that fluid is not changing. So when the phase is taking place, the temperature is not changing. You are giving heat or you are extracting heat. So, much amount of heat you are supplying or much amount of heat you are extracting, but temperature is not changing. That's why that heat, the fluid, the maximum heat capacity it is what, that is infinite. So something by infinity, what you will have, you will have zero. तो C इक्वल टू जीरो होता है किस केस में, बॉयलर या कंडेंसर के केस में, बिकॉज बॉयलर और कंडेंसर के केस में एक फ्लूइड का फेस चेंज नहीं होता, एंड इफ वन फ्लूइड इज नॉट चेंजिंग इट्स फेस, सो m डॉट cp बिग, m डॉट cp बिग विल बी व्हाट, इट विल बी इनफाइनाइट. सो समथिंग फाइनाइट डिवाइड बाय इनफाइनाइट, यू विल हैव जीरो. सो C जीरो होता है किसके लिए, बॉयलर और कंडेंसर के लिए. ओके, C इक्वल टू 1 किसके लिए होगा बच्चों, C इक्वल टू 1 हो सकता है किसके लिए, अगर आपका बहुत हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड देयर हैविंग सेम हीट कैपेसिटी रेट. अगर m डॉट cp h, m डॉट cp दोनों का हीट, बोथ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड देयर हैविंग सेम हीट कैपेसिटी रेट, तो C कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो इन जनरल C कैन बी 0 1 और इट विल बी बिटवीन 0 एंड 1. तो देखो बच्चों, दिस इज द प्लॉट बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड NTU. तो जैसे जैसे NTU बढ़ता है इफेक्टिवनेस बढ़ता है, NTU बढ़ता है तो इफेक्टिवनेस बढ़ता है. बट व्हाई दीज सो मेनी कर्व्स, गाइस ये पहला कर्व है जब C इक्वल टू 1 है, दूसरा कर्व है जब C इक्वल टू 0.75 है, तीसरा कर्व जब C इक्वल टू 0.5 है, फिर C इक्वल टू 0.25 व्हेन C इक्वल टू 0. तो जो सबसे ऊपर वाला कर्व है वो किसके लिए, व्हेन C इक्वल टू 0. व्हाई, बिकॉज इफेक्टिवनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C. C का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0. तो इफेक्टिवनेस वाला कर्व सबसे ऊपर है, मतलब इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा है, एंड C का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1. तो जब C 1 होगा इफेक्टिवनेस कम होगा, बिकॉज इफेक्टिवनेस एंड C दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इफेक्टिवनेस NTU दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जैसे जैसे NTU बढ़ रहा है इफेक्टिवनेस इज इंक्रीजिंग, बट जैसे जैसे C बढ़ेगा इस डायरेक्शन में C क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, बट इफेक्टिवनेस क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है बच्चों. आर गेटिंग व्हाई, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलो कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं अभी. ओके, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं नाउ. सो सम क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व गाइस. द नॉर्मल ऑटोमोबाइल रेडिएटर इन ए हीट एक्सचेंजर. हीट एक्सचेंजर में जो आपका रेडिएटर होता है बच्चों, रेडिएटर जो आपके ऑटोमोबाइल में सबसे सामने लगा होता है, तो जो एयर आती है, एयर और फ्लूइड, यहाँ पे अंदर हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है, हॉट फ्लूइड विच इज कमिंग फ्रॉम द इंजन, और एयर यहाँ सामने से आ रहा है. तो दे आर पैरेलल, काउंटर और क्रॉस. तो दोनों में कैसा अरेंजमेंट होता है, द अरेंजमेंट इज क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर. तो जो रेडिएटर होता है बच्चों, दैट इज ए क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर. इन ए हीट एक्सचेंजर विद वन फ्लूइड इवोपरेटिंग और कंडेंसिंग, द सरफेस एरिया इज लीस्ट इन. देखो, अगर एक फ्लूइड हीट एक्सचेंजर में एक फ्लूइड का इवोपरेशन हो रहा है या कंडेंसर हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, तो उस केस में डेल्टा TM पैरेलल दैट इज इक्वल टू डेल्टा TM काउंटर. पैरेलल काउंटर दोनों का डेल्टा TM सेम होता है. तो उस केस में सरफेस एरिया किस में कम देना पड़ेगा आपको, अरे दोनों में बराबर ही देना पड़ेगा. व्हाई, बिकॉज डेल्टा TM इज सेम. तो डेल्टा TM अगर डेल्टा TM काउंटर का ज्यादा है, जो जनरली इन केसेस में ज्यादा होता है, इफ द नो चेंज इन फेस ऑफ द फ्लूइड इज टेकिंग प्लेस, तो तब डेल्टा TM काउंटर का ज्यादा होता है फॉर द सेम इनलेट एंड एग्जिट कंडीशन. उस केस में एरिया रिक्वायर्ड फॉर द काउंटर विल बी लेसर इफ यू वांट सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर. Okay, but in इस केस में when one of the fluid is changing its phase, delta TM parallel, delta TM counter will be same, तो area required will be same, effectiveness भी दोनों का क्या हो जाएगा, same हो जाएगा बच्चों. Consider the following arrangement in a shell and tube type heat exchanger. Baffles are provided on the shell side to prevent the stagnation of shell side fluid, improve heat transfer, provide support for the tubes, prevent fouling of tubes. Which of these statements are correct? तो बच्चों जो बैफल्स होती है बच्चों, बैफल्स अगर आप हीट एक्सचेंजर में देखोगे, ये जो आपको प्लेट्स दिख रही है, ये जो आपको ये प्लेट्स दिख रही हैं, दीज आर नोन एज बैफल्स. और बैफल्स का काम क्या होता है हीट एक्सचेंजर में, शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में, दे सपोर्ट द ट्यूब, ट्यूब को सपोर्ट करती हैं, अदरवाइज ट्यूब्स बैंड हो सकती हैं, तो ट्यूब्स को सपोर्ट करती हैं. एंड एट द सेम टाइम दे इंड्यूस सम काइंड ऑफ टर्बुलेंस, फ्लूइड में टर्बुलेंस इंड्यूस करती है. सो मोर इज द टर्बुलेंस, मोर इज द इंटरमिक्सिंग, मोर इज द हीट ट्रांसफर. तो टर्बुलेंट मोशन में हीट ट्रांसफर आपका बढ़ जाएगा, और ये रेस्ट्रिक्ट करती हैं कि फ्लूइड स्टैग्नेंट ना हो पाए, सो दैट देयर विल बी कंटिन्यूअस मोशन ऑफ द फ्लूइड. तो स्टैग्नेशन को अवॉइड करती हैं शेल साइड पे, टर्बुलेंस इंड्यूस करती हैं, सो दैट मोर विल बी द हीट ट्रांसफर, और दे सपोर्ट द ट्यूब. ओके, बट फाउलिंग से कोई रिलेशन नहीं है ट्यूब्स का. तो टू प्रिवेंट द स्टैग्नेशन ऑफ द शेल साइड फ्लूइड, दिस इज राइट. इंप्रूव द हीट ट्रांसफर, दिस इज ऑल्सो राइट.
इंप्रूव कैसे कर रही हैं? बाय इंड्यूसिंग द टर्बुलेंस. प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द ट्यूब, दिस इज ऑल्सो राइट. प्रिवेंट फाउलिंग ऑफ ट्यूब्स, नो, फाउलिंग से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ओनली 1, 2 एंड 3 आर राइट. तो सी क्या हो जाएगा बच्चों? इज द राइट आंसर. इन ए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर फॉर हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड, हीट कैपेसिटी इज दिस. ये आपको हॉट एंड कोल्ड का क्या दिया? आपको हीट कैपेसिटी दिया है. ओके, मास फ्लूइड दिया है, इनलेट टेम्परेचर दिया है, आउटलेट टेम्परेचर दिया है. फॉर द कोल्ड भी उसने सब कुछ दिया है आपको. आपसे क्या पूछ रहा है? आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड फ्लूइड. इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस. कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको? m डॉट एच CpH इंटू THI माइनस THE दैट इज इक्वल टू m डॉट C CpC इंटू TCE माइनस TCI. m डॉट एच हॉट फ्लूइड का मास फ्लो रेट कितना है? अच्छा, वो तो हीट कैपेसिटी है, मास फ्लो रेट है 5, सो 5 इंटू हीट कैपेसिटी कितना है? 2. एंट्री टेम्परेचर कितना है? 150. एग्जिट कितना है? 100. कोल्ड का मास फ्लो रेट 10, हीट कैपेसिटी 4, एग्जिट टेम्परेचर निकालना है, इनलेट टेम्परेचर 20 है. सो दिस इज वेरी सिंपल. 5, 10 से ये कट जाएगा आपका. ओके, तो ये आ जाएगा 50 इक्वल टू 4 TCE माइनस 80. तो TCE कितना आ जाएगा? TCE इक्वल टू 130 डिवाइड बाय 4. तो 4 3 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, तो 32.5 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड फ्लूइड. ओके, कोल्ड फ्लूइड का एग्जिट टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 32.5. ये आंसर हो जाएगा अपना. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं गाइस. मैच लिस्ट 1 एंड 2. आपको लिस्ट 1 और 2 मैच करनी है. लिस्ट 1 में आपको अलग अलग हीट एक्सचेंजर लिखे हुए हैं, काउंटर फ्लो सेंसिबिलिटी, पैरेलल फ्लो सेंसिबिलिटी, इवोपरेटर, कंडेंसर, एंड हियर यू आर हैविंग टेम्परेचर प्रोफाइल. तो बच्चों ये किसका टेम्परेचर प्रोफाइल है? सर या ये फेस चेंज हो रहा है, वन ऑफ द फ्लूइड इज चेंजिंग इट्स फेस बिकॉज वी आर हैविंग ए लाइन. अब फेस चेंज हॉट का हो रहा है, कोल्ड का हो रहा है? सर कोल्ड का फेस चेंज हो रहा है, मींस दिस इज व्हाट? दिस इज बॉयलर, दिस इज इवोपरेटर. ये क्या आपका इवोपरेटर है? ये इवोपरेटर है. ये कौन सा है सर? ये कंडेंसर है, बिकॉज हॉट फ्लूइड का फेस चेंज हो रहा है. ये इवोपरेटर है, ये कंडेंसर है. ये क्या है? सेंसिबिलिटी है. यहाँ पे कोई फेस चेंज नहीं हो रहा है, सेंसिबिलिटी हो रहा है. यहाँ पे लेटेंट हीट एक्सचेंज हो रहा है, तो बॉयलर कंडेंसर है. यहाँ पे सेंसिबल हीट एक्सचेंज हो रहा है. ये कौन सा है? पैरेलल है, काउंटर है? दिस इज काउंटर, काउंटर, एंड दिस इज व्हाट? पैरेलल. चलिए तब इसको मिलाते हैं. पैरेलल काउंटर फ्लो सेंसिबिलिटी. काउंटर फ्लो सेंसिबिलिटी कौन सा है बच्चों? दिस. सो ए के साथ 3 मैच कर जाएगा. पैरेलल फ्लो सेंसिबिलिटी 4, इसके साथ 4 मैच कर जाएगा. इवोपरेटर, इवोपरेटर कौन सा है बच्चों? ये वाला है, तो इसके साथ 1 मैच कर जाएगा. और कंडेंसर कौन सा है? कंडेंसर ये है, तो इसके साथ 2 मैच कर जाएगा. तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा. तो ऑप्शन ए 3 4 1 2 ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर, कंडक्शन थ्रू ए सिलिंड्रिकल वॉल, कंडक्शन थ्रू ए स्फेरिकल वॉल. तो रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर कैसा होता है आपका? मैंने बताया था आपको, एक जंगस्टॉर्म एयर प्रीहीटर. जंगस्टॉर्म एयर प्रीहीटर आपका क्या है? आपका रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर है. कूलिंग टावर आपकी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर है. कूलिंग टावर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर. सो 2 1. कंडक्शन थ्रू ए सिलिंड्रिकल वॉल. जब भी कंडक्शन होता है सिलिंड्रिकल वॉल के थ्रू, तो अपने को टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा मिलता है? लोगरिथमिक मिलता है. सो 4. और कंडक्शन होता है स्फेरिकल वॉल से, तो टेम्परेचर प्रोफाइल आपका होता है हाइपरबोलिक, तो 3. तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो डी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा. ओके, सो लाइक दिस वी कैन आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. गाइस इसके लिए थोड़ा सा आपको एक फार्मूला तो नहीं याद रखना, बट वो मैं लिख देता हूं. इफेक्टिवनेस ऑफ पैरेलल ये होता है 1 माइनस ई की पावर माइनस NTU इंटू 1 प्लस सी डिवाइड बाय 1 प्लस सी. देखो मैंने आपको बताया था इफेक्टिवनेस जो होता है इट्स ए फंक्शन ऑफ सी एंड NTU. इफेक्टिवनेस NTU और सी का फंक्शन होता है बच्चों. अब जो रिलेशनशिप है वो डिराइव करने की जरूरत तो नहीं है, बट यू नीड टू रिमेंबर इफेक्टिवनेस पैरेलल ये होता है. इफेक्टिवनेस काउंटर का जो इफेक्टिवनेस है वो होता है 1 माइनस ई की पावर माइनस NTU इंटू 1 माइनस सी डिवाइड बाय 1 माइनस सी ई की पावर माइनस NTU इंटू 1 माइनस सी.
So this is the expression of effectiveness of parallel, this is the effective expression for effectiveness of counter. अब देखो इसमें एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस कौन सा? बॉयलर और कंडेंसर, बॉयलर एंड कंडेंसर। बॉयलर और कंडेंसर का एक स्पेशल केस है। बॉयलर और कंडेंसर के लिए C कितना होता है बच्चों? बॉयलर और कंडेंसर के लिए सर C 0 होता है, आपने अभी बताया था। बॉयलर और कंडेंसर के लिए C क्या होता है? 0। तो अगर C 0 है, ये टर्म क्या हो जाएगा? 1 माइनस ई की पावर माइनस एन टी यू डिवाइड बाय 1 ही बचेगा। सिमिलरली 1 माइनस ई की पावर माइनस एन टी यू, नीचे भी क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। तो इफेक्टिवनेस पैरेलल, अगर ये C 0 है, अगर C इक्वल टू 0 है, मतलब बॉयलर और कंडेंसर के लिए तो इफेक्टिवनेस पैरेलल इक्वल टू इफेक्टिवनेस काउंटर। मैंने बताया था जब भी फेज चेंज होता है डेल्टा टी एम पैरेलल इक्वल टू डेल्टा टी एम काउंटर, हीट ट्रांसफर भी सेम हो जाता है अगर उनका एरिया सेम है और उनकी इफेक्टिवनेस भी सेम होती है। तो इफेक्टिवनेस पैरेलल इक्वल टू इफेक्टिवनेस काउंटर वो क्या होगा? 1 माइनस ई की पावर माइनस एन टी यू। ओके, इफेक्टिवनेस पैरेलल इक्वल टू इफेक्टिवनेस काउंटर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एन टी यू। तो ये जो रिलेशनशिप है इफेक्टिवनेस का, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? दिस इज एप्लीकेबल टू बॉयलर एंड कंडेंसर बोथ पैरेलल एंड काउंटर फ्लो। बॉयलर एंड कंडेंसर क्या ओनली पैरेलल के लिए नहीं, काउंटर के लिए नहीं, दिस इज फॉर व्हाट? बॉयलर एंड कंडेंसर फॉर बोथ पैरेलल एंड काउंटर फ्लो। तो सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं बच्चों। काउंटर फ्लो का अभी एक हीट एक्सचेंजर का हमने इफेक्टिवनेस का रिलेशनशिप लिखा था हमने। इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एन टी यू into 1 minus c divided by 1 minus c e की power minus ntu into 1 minus c. So this is the effectiveness of counter. ये क्या है? effectiveness of counter. तो इसमें एक स्पेशल केस है when c equal to 1, ओनली काउंटर के लिए बच्चों। ये वाला केस था पैरेलल काउंटर दोनों के लिए जब c equal to 0 है, बॉयलर और कंडेंसर। ये दूसरा केस क्या है? स्पेशल केस फॉर कंडेंसर, स्पेशल केस फॉर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर when C equal to 1 means the heat capacity rate of hot that is equal to heat capacity rate of cold। मतलब C क्या हो जाएगा? heat capacity rate ratio, C is heat capacity rate ratio, both are same, तो C equal to क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो C equal to 1 for counter। जब C equal to 1 होता है काउंटर के लिए, तो अगर आप यहाँ पे इसको C को 1 पुट करेंगे तो इफेक्टिवनेस कितना हो जाएगा काउंटर का? देखो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0 ओनली। तो e की पावर 0, e की पावर 0 तो वो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बट यू विल गेट 0। नीचे भी क्या आएगा? आपका 0 आएगा। सो यू विल गेट 0 बाई 0 फॉर्म। ये क्या बन जाएगी? 0 बाई 0 फॉर्म, इनडिटर्मिनेट। तो इस केस में जो इफेक्टिवनेस है, अगेन बाय एल हॉस्पिटल रूल, अगेन बाय एल हॉस्पिटल रूल वी कैन राइट दिस इफेक्टिवनेस एज NTU डिवाइड बाय 1 प्लस NTU। तो ये याद रखना बच्चों, इफेक्टिवनेस ऑफ ए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, effectiveness of a counter flow heat exchanger when C equal to 1, इफेक्टिवनेस कितना होता है? NTU by 1 plus NTU। दिस इज अनदर स्पेशल केस। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, he has given you what for this case C equal to 1 है, काउंटर फ्लो है, बैलेंस्ड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, बैलेंस्ड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। सो ही हैज गिवन यू काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर बैलेंस्ड, मतलब कि ये C इक्वल टू 1 है, ही हैज गिवन यू आल्सो, और NTU दे दिया उसने आपसे, एंड ही इज आस्किंग यू द इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस कितना हो जाएगा? NTU by 1 plus NTU, NTU is 1, so 1 plus 1 by 1 plus 1, so you will have what? 1 by 2, so effectiveness will be 0.5, 0.5 और 50% will be the effectiveness। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं बच्चों। ए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड टू हीट हॉट एंड हीट वाटर विद हॉट एग्जॉस्ट गैसेस। द वाटर का स्पेसिफिक हीट दिया है आपको, फ्लो रेट दिया है, एग्जॉस्ट गैस का स्पेसिफिक हीट दिया है और आपको फ्लो रेट दिया है। इज एरिया इज गिवन यू, इज आस्किंग यू व्हाट? NTU। आपको ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी दिया है, तो आपसे पूछ रहा है NTU। गाइस व्हाट इज NTU? प्रोडक्ट ऑफ UA डिवाइड बाय m डॉट Cp स्मॉल। तो U कितना दिया है आपको? सर U is given to us 200, so this is 200. How much is the area given? Sir, area is this. Area is this 32.5. Okay, this is the area given to us 32.5. What is m dot Cp small? देखो m dot Cp एग्जॉस्ट गैसेस के लिए, एग्जॉस्ट गैसेस के लिए मतलब ये हॉट है, यही क्या आपका हॉट है बच्चों, ये हॉट है। एग्जॉस्ट गैसेस क्या है? हॉट है। कितना है m डॉट Cp स्मॉल फॉर एग्जॉस्ट गैसेस?
फ्लो रेट कितना है 5.25 इंटू 1030, ये आ जाएगा एम डॉट सी पी फॉर द एग्जॉस्ट गैसेस। सिमिलरली एम डॉट सी पी जो है आपका वाटर के लिए, और ये क्या है कोल्ड है, वाटर क्या है कोल्ड है, वाटर को आप हीट कर रहे हो, और ये कितना है 4.2 या 4.180 यूनिट सेम रखते हैं, तो दिस इज 4.4180 यूनिट सेम रखते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी मैंने 1030 लिखा है जूल पर केजी। सो दिस इज 4180 इंटू फ्लो रेट। फ्लो रेट इज व्हाट, हाउ मच इज द फ्लो रेट 2। तो आप मेरे को इसको जस्ट ऑब्जर्व करके कैन यू टेल मी विच वन इज मोर, 4180 इंटू 2 इट विल कम आउट क्लोज टू व्हाट 8360, 8360 आ जाएगा, 800 सॉरी 8000, 8360 आ जाएगा आपका। ये कितना आएगा, दिस विल कम आउट क्लोज टू बिटवीन 5500। सो ऑब्वियसली दिस इज लुकिंग लाइक लेसर देन दिस, ये क्या है इससे कम है, तो अपने को कौन सा लेना है एम डॉट सी पी स्मॉल, इट मीन्स विच यू विल टेक दिस वन 5.25 इंटू 1030, और अगर ये हो गया देन ओनली यू नीड टू सोल्व दिस एंड इट इज वेरी इजी टू सोल्व दिस। सो 200 इंटू ऐसे लिख देते हैं, ओके, इंटू 10, एक 10 यहाँ लिख देते हैं, नीचे क्या आ जाएगा आपका 525 इंटू 1030। ओके, तो पॉइंट्स मैंने रिमूव कर दिया जस्ट टू सिंप्लीफाई दिस। ओके, अदरवाइज आप चेक कर सकते हो, अगर ये डायरेक्ट कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई हो सकता है तो डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से चेक करना इजी है। तो इसको मैंने 100 लिखा, एक 10 इसका 10 था वो कट गया, एक 10 ऊपर चला गया, तो इसको सोल्व करते हैं। तो 25 पे भेजेंगे तो 2 आएगा, and then again you will have what, you will have 1, इसको 25 पे भेजेंगे तो 1, तो it will be 3, okay, yes you will have this। तो इसको इससे काट देते हैं, this will cancel out, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे so this will come out 2600, इसको इससे करते हैं तो it will be what 63, 6, it will be this, okay, it will be this, you can check। So if you are dividing this by this, what you will get, you will get 2.4, no, 2.4 you are not going to get because it is not looking like double of this, 4.5 भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, you can check, the answer will be 1.2। आंसर कितना आएगा आपका 1.2 will be the answer for this question। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं बच्चों। इन ए सर्टेन हीट एक्सचेंजर बोथ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड हैव आइडेंटिकल मास फ्लो रेट, specific heat product, the hot fluid enter at 76, leaves at this, cold fluid enter at 26 and leaves at 55। आपसे इफेक्टिवनेस पूछ रहा है, तो गाइस इफेक्टिवनेस पूछ रहा है व्हेन m dot h cph that is equal to m dot c cpc, both hot and cold fluid they are having same heat capacity rate। तो इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगा बच्चों, इफेक्टिवनेस विल बी thi minus the डिवाइड बाय THI minus TCI, और because ये case 3 है बच्चों, we have discussed case 3 when the heat capacity rate of hot and cold both are same, तो case 3 वाला है ये, THI minus THE that is divided by THI minus TCI that is equal to TCE minus TCI divided by THI minus TCI। So anyone you can take, so let me take hot fluid change in temperature। So hot is entering at 76, leaving at 47, so 76 minus 47 divided by 76 minus 26, so what do you will get guys, 26, 29 divided by 50, 29 divided by 50, so how much you will get, 0.290, so it will go to 5, then 400 it will go to 8, so 0.58 will be the आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इफेक्टिवनेस कितनी आ जाएगी, इफेक्टिवनेस विल बी 0.58। ओके, सो बच्चों ये कुछ सेशन था हमारा, ये जो सेशन था हमारा हमने डिस्कस किया अबाउट द हीट एक्सचेंजर, वी हैड डिस्कशन अबाउट द हीट एक्सचेंजर, ओके, एंड सम क्वेश्चन आल्सो वी हैव डिस्कस्ड। आई होप you got the point, basic discussion we had related to heat exchanger. Please practice more and more questions from this particular topic, heat exchanger analysis part and the type of heat exchanger. Okay, again we will meet and we will discuss some another topic from JK Jammu Kashmir Public Service Commission. Thank you, keep preparing, good luck.